Hello students, I am back with another video from the chapter Current Electricity, and in this video we are going to study following topics: Ohm's law, resistance, resistivity and factors affecting resistance. So let's begin with our first topic, that is Ohm's law. Ohm's law is basically an experimental observation, a study that is done by observing experiments. In these experiments, a conductor is connected to a battery, or we can say a potential is set up across a conductor, and due to this a current starts flowing across it, and the relationship between the two, that is the current and the potential difference, is known as Ohm's law. So as per the experimental observations, Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. It means जो भी कंडक्टर आपने लिया है उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा, प्रोवाइडेड कि जो भी फिज़िकल कंडीशंस हैं जिनमें आपने उस कंडक्टर को सेट किया है या प्लेस किया है उनमें से किसी को भी आप चेंज नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा. So what is Ohm's law? Ohm's law is the experimental observation which states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions remains unchanged. Mathematically we can write it as potential difference is directly proportional to the current, or V is proportional to I, and as we know, when we remove this proportionality sign we have to put a proportionality constant. Now this proportionality constant, capital R, is called resistance of the conductor. दैट कंडक्टर जो हमने कंसीडर किया था, जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा. और वी कैन से आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V upon I. If we plot a graph between V and I, it will be a straight line as shown in the diagram. Also we have to note that the proportionality constant or resistance R is independent of capital V and capital I, means ये potential difference या current पे depend नहीं करता है, but it depends on the nature of the conductor, its length and its area of cross section. किस किस पे डिपेंड करेगा? उसके जो भी कंडक्टर का मटेरियल है, मीन्स उसका नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पर डिपेंड करेगा. प्लस इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशंस, बिकॉज द लॉ ऑलरेडी स्टेट्स दैट ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशंस फिजिकल कंडीशंस हैव टू रिमेन सेम. अगर हम फिजिकल कंडीशंस को चेंज करते हैं देन ओम्स लॉ उस कंडीशन में वैलिड नहीं होगा. तब आपको ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट V प्रोपोर्शनल टू I एग्जिस्ट करे अगर आप फिजिकल कंडीशंस को चेंज करते हो तो. ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब ये सारे फिजिकल कंडीशंस, सारे फिजिकल पैरामीटर्स अनचेंज्ड रहेंगे. दिस ग्राफ बिटवीन V एंड I इज कॉल्ड VI ग्राफ फॉर एन ohmic कंडक्टर बिकॉज इट फॉलोज ओम्स लॉ. Let's move to the next term, that is resistance. We can define resistance as a property of a conductor due to which it opposes the flow of charges. Now we know that rate of flow of charge is called current. It means अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज का, और अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो वो कंपैरेटिवली कम अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज का. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट अगर हम किसी फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस पे देखते हैं, लाइक अगर मैं V को कांस्टेंट कर दूं, उस केस में फॉर अ कंडक्टर
हैविंग हाई रेजिस्टेंस करंट शुड बी लेस. जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम फ्लो करेगा, एंड जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा. सो रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि उस कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा या कम चार्ज फ्लो करेगा. अगर रेजिस्टेंस कम है तो चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा, मीन्स करंट ज़्यादा होगा. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो चार्ज कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो होगा. One more thing which should be very clear, that resistance and resistor are two different things. Resistance is a property. Resistance is a property of a conductor due to which it opposes the flow of charge, while resistor is a device or a circuit element that we use in different circuits to control the flow of current. रजिस्टर, जहाँ हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहाँ हम रजिस्टर को एज अ सर्किट एलिमेंट या एज अ डिवाइस यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस और टू insert the resistance in that circuit. So resistance is a property while resistor is a device. Now SI unit of resistance is ohms and it is denoted by the letter omega. This is called omega. Now according to the formula we know that R is equal to V upon I. So how can we define 1 ohms using this formula is 1 omega is equal to 1 volt upon 1 ampere. That means resistance of a conductor is 1 ohms if a current of 1 ampere flows through it on applying a potential of 1 volt across its ends. Means अगर आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है उस टाइम पे, मीन्स to get a current of 1 ampere across a conductor, if we need 1 volt of potential difference, then the resistance of that conductor is 1 ohms. मीन्स अगर 1 एम्पियर करंट के लिए मुझे किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना पड़ता है, देन उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम और 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होगा. Next important thing is the factors that affect this resistance. So basically we have 3 factors जो किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं. बट इन सबको कंसीडर करने के लिए हमने जो सिचुएशन ली है वो ली है कांस्टेंट टेम्परेचर की. अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर को देखते हैं तब उसका रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स के accordingly vary करेगा. Like first one is length. If temperature is a constant, then resistance of a conductor is directly proportional to the length. इसका मीनिंग क्या होगा? It means कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. सपोज आई हैव 2 वायर्स. One is of length 2 meter and the next is of length 7 meter. Okay, first wire is of length 2 meter, second wire is of length 7 meter. Both are placed at 27 degrees Celsius and we are not changing the temperature. Both wires are of same material, same area of cross section, सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं. एक का लेंथ 2 मीटर है, दूसरे का लेंथ 7 मीटर है. तो हमें देखना है कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा. अब हमने पढ़ा दैट रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन जो कंडक्टर लगाता है फ्लो ऑफ चार्ज में. जब कंडक्टिंग वायर 2 मीटर का होगा तो वो कम अपोज करेगा, वाइल जब कंडक्टिंग वायर 7 मीटर का होगा देन वो ज़्यादा अपोज करेगा, बिकॉज यहाँ पर उसके पास ऑपोजिशन के लिए लेंथ ज़्यादा है. सो दैट्स द रीज़न कि जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा
opposition and that's why उतना ज़्यादा resistance. Okay, so resistance is directly proportional to the length of the conductor. Coming to the next factor, that is area of cross section. Again, we consider two wires of different cross section but same length. Now in this case we consider two wires of same material, same temperature, same material, same temperature, same length, but area of cross section is different. Okay, let's make it different. Area of cross section is different. Suppose here area of cross section is A1 and here area of cross section is A2, such that A1 is less than A2. A1 is less than A2. Now अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, मीन्स वायर मोटा है, तो चार्ज कैरियर के पास या इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो करने के लिए स्पेस ज़्यादा है, और जब उनके पास स्पेस ज़्यादा है दैट मीन्स कि ऑपोजिशन कम है और रेजिस्टेंस कम है. तो यहाँ ये नेचर आ गया इन्वर्स का. मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वायर थिन है, पतला है, तो चार्ज कैरियर्स को ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है ड्यूरिंग देयर फ्लो. वाइल अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तब चार्ज कैरियर्स को कम ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग देयर फ्लो. सो इन दिस केस एरिया एंड रेजिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एरिया कम तो ऑपोजिशन ज़्यादा, इट मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा. अगर एरिया ज़्यादा तो ऑपोजिशन कम और रेजिस्टेंस भी कम. राइट. नेक्स्ट द थर्ड थिंग इज नेचर ऑफ द मटेरियल. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वायर या कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है. आप आयरन की बात कर रहे हो, आप सिल्वर की बात कर रहे हो, आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो. सो एवरी मटेरियल हैज़ इट्स ओन नेचर. तो अगर आप मटेरियल चेंज करोगे, आपने दो वायर्स लिए जिनके सारे पैरामीटर सेम है बट उनका मटेरियल अलग अलग है, लाइक एक बना हुआ है गोल्ड का और दूसरा बना हुआ है नाइक्रोम का, तो दोनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं हो सकते. तो नेचर ऑफ मटेरियल मैटर्स अ लॉट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस. Okay, so on combining the above two relations we get the resistance of a conductor depends on length directly and area of cross section inversely. ये याद रखना है that A is not area, A is area of cross section. ये cross section का area है. While removing this proportionality sign we have to put this proportionality constant rho known as resistivity. Known as resistivity of the material of the conductor. ये उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है जिसका वो कंडक्टर बना हुआ होगा. Okay, so moving to the next topic, that is resistivity. Resistivity is also known as specific resistance and is denoted by rho. From the formula R is equal to rho L upon A, we can define this resistivity. How can we define this? We take L is equal to 1 unit, that is 1 unit length, and area of cross section A is equal to 1 square unit, then resistance R is equal to rho. So we can define resistivity or specific resistance of a material as the resistance of a conductor of that material having unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन. मीन्स जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप डिफाइन करना चाह रहे हो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर हम उसका लेंथ 1 यूनिट लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट लेते हैं. मीन्स सपोज मेरे पास कोई मटेरियल है X जिसका रेजिस्टिविटी मुझे निकालना है या डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस X मटेरियल का एक वायर लूँगी जिसकी लेंथ मैं 1 यूनिट रखूँगी और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैं 1 स्क्वायर यूनिट रखूँगी. उस केस में वो जो वायर मुझे जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल X. ओके, और वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल. वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि अगर आप
जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफाइन करना चाहते हो उसका आप एक क्यूब बना लो। क्यूब बनाओगे जब आप, तो उसकी सारे साइड्स 1 1 1 होंगे, तो अगर उसका लेंथ आप देखोगे तो भी वो 1 यूनिट आएगा, और अगर आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो भी वो 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। उस केस में वो क्यूब ऑफ दैट मटेरियल जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट विल बी द resistivity of that particular material. Next, the SI unit of resistivity. For SI unit, we know the relation R is equal to rho L upon A. Now, R is equal to rho L upon A को rearrange करके we can get rho is equal to R into area of cross section upon length L. Putting the units of these values, we get ohm into meter square upon meter. So SI unit of resistivity rho is equal to ohm meter or omega meter.